everyone. In my previous video, I have discussed about the HSC instructions written down on the hall ticket, what you can carry at the board center, what are the things you must have during the exam, and what are the things which are not allowed. In this video, I'm going to be talking about the instructions which are given on the answer booklet. So please stay on till the end, and I hope this video becomes helpful. Thank you. This is the first page of the answer sheet that you will be given in your board examination. This is a sample answer sheet. Your board answer sheet is quite similar. So if you will see here, the answer sheet starts from this section where the very first part that you have as the highlighters moving here is about the center number. This will appear on your hall ticket, right? So a hall ticket has the seat center number. Your hall ticket will also have the seat number, which starts with your alphabet M in case of HSC and A in case of SSC. The same thing has to be written in words in this little space. This also appears in your hall ticket. So each time you're filling up this detail in your main answer book or in your answer supplement, please make sure that you keep your hall ticket in front of you. Obviously, the signature that you're supposed to do must match the signature which you have done in your on your hall ticket with your examination form. So you have your photograph under which you have your signature on the hall ticket, which must match here. This section is for the supervisor that you have in the class. His signature will be appearing here. All right. So we have these basic instructions here. Apart from that, if you will see the lower section, you will find that we'll come to the holograph sticker a little later, because a holograph sticker is supposed to be done in the last 10 minutes of your examination. This year for English, you don't have set A, B, C, D, so nothing will appear in any of the papers in question paper set code. If at all it still exists in your paper. Before we go down, let us take a look at this section where you have to put your barcode sticker. The very important thing, once you have filled up these details, the supervisor will come to you with a strip of barcode stickers. These barcode stickers have to be stuck in this section. If you see, there is a perforated line here. The barcode sticker also has a matching perforated line with holes. तो इसी जगह पे आपको अपना स्टिकर लगाना है और देखना है कि वो सही से बैठे. समटाइम्स सुपरवाइजर खुद लगा देंगे और बाकी आपको लगाना होगा. ठीक है. सो दिस इज द प्लेस फॉर योर बारकोड स्टिकर. चेक करना है कि आपके जो सीट नंबर है उसी नंबर का बारकोड आपके सुपरवाइजर लगा रहे हैं. वो भी जरूर बहुत केयरफुली लगाएंगे. फिर भी बच्चों ने भी ये चेक कर लेना है. इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही स्टिकर ये चेक हो जाएगा, स्टिकर लग जाएगा, उसके बाद अगर आप बोलोगे कि मेरी आंसर सप्लीमेंट फटा हुआ है तो वो चेंज नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले जैसे ही आंसर शीट आपको 10:30 आपके एग्जाम की 30 मिनट्स पहले मिल जाएगा, तो आपको चेक कर लेना है कि सारे पेजेस ठीक हैं, कुछ फोल्डेड नहीं है, कोई पेज ब्लैंक नहीं है. उसके बाद आपके सीट नंबर लिखो, सेंटर नंबर लिखो और देन साइन होने के बाद आपके सुपरवाइजर आके बारकोड स्टिकर दे देंगे. आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट है आपका, यहाँ आपको लिखना है. अगर आपका सब्जेक्ट नाम बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सिर्फ एब्रीविएशन लिखो OCM, वो भी चलेगा. BK लिखिए, वो भी चलेगा. अदरवाइज इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, व्हाटएवर यू वांट टू राइट विल फिट हियर. मैथ्स में अभी भी पेपर 1, पेपर 2 फॉर्मेट है, बाकी किसी में नहीं है. तो आपको यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है, डैश कर देना है, डेट ठीक से लिखना है. आपके हॉल टिकट पर आपके सीट नंबर के सामने आपके टाइमिंग लिखा है, टाइमिंग के आगे लैंग्वेज ऑफ आंसर भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पर अगर आप जिस मीडियम से हो ज्यादातर उसी का लिखना है. अगर आप इंग्लिश मीडियम में कॉमर्स कर रहे हो और आपका हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी लैंग्वेज ऑफ आंसर होगा. तो ज्यादा सोचिए मत, जो वहां लिखा हुआ है वही लिखिए. नीचे के सेक्शन में ये अगेन एक हिस्सा है जो आपको लास्ट 10 मिनट्स में करना है. आंसर बुकलेट्स कितने आपने सप्लीमेंट्स अटैच किए हुए हैं, तो ये जो है वो आपका 1 है. सपोज आपने 2 सप्लीमेंट अटैच किए, 1 + 2 3 लिखना होगा. सपोज आपने एक भी सप्लीमेंट अटैच नहीं किया है, फिर भी ये सेक्शन भरना बहुत जरूरी है. एंड उसके लिए आपको ये वाला जो हिस्सा है एंड उस हिस्से पर आपको 0 लिखना होगा. ठीक है. तो टोटल 1 + 0 विल बिकम
1। तो ये हो गया सप्लीमेंट वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपको ये वाला सेक्शन के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। एक नजर डाल लेते हैं राइट साइड के सेक्शन के ऊपर, जहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फिर एक बार मराठी में लिखे हुए हैं। तो वी विल जस्ट टेक अ लुक देयर। इफ यू विल सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर, देखिए क्या बता रहे हैं कि विद्यार्थ्यांना प्रथम परीक्षेकडून बारकोड स्टिकर घ्यावे. सो यू हैव टू टेक द स्टिकर, you have to fix it up over there. You have to make sure that barcode sticker is exactly in the place where it is supposed to be. Numbers are matching. अब ये आपके पास जो बारकोड स्टिकर, किसी ने उसके ऑन टॉप ऑफ द बारकोड स्टिकर कुछ भी नहीं लिखना है. आगे चलकर जो होलोग्राफ स्टिकर आपको दिया जाएगा, उस होलोग्राफ स्टिकर से आपके बारकोड के स्टिकर के ऊपर आपका जो सीट नंबर था, देखिए होलोग्राफ स्टिकर यहाँ आएगा, तो आपका जो सीट नंबर था वो इस हिस्से में दिखाई दे रहा है. जैसे ही होलोग्राफ ब्लैक कलर का एक शीट लगा देंगे तो आपका ये ओरिजिनल सीट नंबर कवर हो जाएगा. बोर्ड नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से किसका पेपर है, कौन से बच्चे का पेपर है ये दिखाई दे, इसलिए ये होलोग्राफ से कवर हो जाने वाला है. अब क्या दिखाई देने वाला है, इस तरफ का बारकोड स्टिकर दिखेगा जिसके ऊपर बारकोड है और कंप्यूटर आपका सीट नंबर रीड कर पाएगा और कोई भी नहीं रीड कर पाएगा. तो ये सेक्शन है जो बच्चों के लिए काम का है. सब्जेक्ट हमने देख लिया, डेट, लैंग्वेज ऑफ आंसर भरना है, आंसर सप्लीमेंट्स एंड में जरूर भरना है. अब देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो बच्चों को ये समझना है कि जब एक एग्जामिनर, सबसे पहले आपका पेपर जाएगा एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर को ये वाले यूआईडी नंबर से आपका पेपर आइडेंटिफाई होता है, जिससे आप कौन हो, आपका ओरिजिनल सीट नंबर कोई कनेक्शन नहीं होगा. तो एग्जामिनर यहाँ पर उनके मार्क्स भर देगा, ऑल द 8 क्वेश्चंस. आफ्टर द पेपर गोज टू द मॉडरेटर, moderators also will be going through the papers and also they will be writing down their marks. ठीक है, तो टोटल इन वर्ड्स, सिग्नेचर, अपॉइंटमेंट नंबर, एग्जामिनर का नंबर, इनिशियल्स होंगे, कोई दूसरी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी. तो ये हो गया आपका फर्स्ट शीट. अब हम जाते हैं सेकंड पेज, जिसके ऊपर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो आई होप एवरीबडी इज पेइंग अटेंशन एंड टेकिंग अ गुड लुक. मराठी में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. लेट अस सी द फर्स्ट वन. ठीक है, तो मेजॉरिटी आप जब एक एग्जाम देते हो तो उसी तरह के जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं. देखिए जैसे द फर्स्ट वन, आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में बेसिकली क्या ले जाना है, हॉल टिकट लेके जाना है, और अगर हो सके तो आपके कॉलेज का आईडी कार्ड. ओके, तो जो भी अगर आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे तो आपके पास वो होना चाहिए और यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट. तो अगर आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का आधार कार्ड या ऐसा कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विथ योर हॉल टिकट रख सकते हैं. जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में 2 फॉर्म्स दिए जाएंगे. एक है फॉर्म नंबर 1. अब बोर्ड के पास प्रूफ क्या है, कॉलेज के पास प्रूफ क्या है कि आपने ये एग्जाम दी हुई है. फॉर्म नंबर 1 में आपके सीट नंबर्स ऑलरेडी सुपरवाइजर्स पहले लिख कर लाएंगे, आपको वहां पर सिर्फ सिग्नेचर करना है. ठीक है, तो लास्ट में सुपरवाइजर्स लिखेंगे कि आपने कितने सप्लीमेंट लिखे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल आपके सीट नंबर के सामने बीच में एक आपका स्टिकर नंबर का कॉलम होगा. ये स्टिकर नंबर भी सुपरवाइजर्स भरेंगे. उस कॉलम को छोड़कर तीसरे कॉलम में आपको सिग्नेचर्स करने हैं. तो ये था पॉइंट नंबर 2. ये प्रूफ है कि आपने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया हुआ है. ठीक है, तो हमेशा सभी को मेक श्योर करना है कि आपके सीट नंबर के सामने आपने साइन किया हुआ है. तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो है कि आंसर शीट के मुख्य पृष्ठावर तसेच पुरवणी उत्तर पत्रिकेवर जहां भी सीट नंबर लिखना है वहां बिना किसी मिस्टेक के परफेक्ट सीट नंबर लिखना है. मेन आंसर शीट पे भी लिखना है एंड सप्लीमेंट्स पे भी लिखना है. पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब तक एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आप जब तक 3 hours and 10 minutes फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा एग्जाम का टाइम खत्म नहीं हो जाता है, आप सेंटर से नहीं जा सकते हो. आपको आपका पेपर हो जाने के बाद भी
बैठना ही होगा. You have to put your head down, relax, but you cannot leave the center. Point number 5. परीक्षार्थींनी उत्तर पत्रिका मिळाल्यावर ती सुस्थितीत असल्याची व त्यात सर्वण पाने असल्याची खात्री करून घ्यावी. जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आंसर शीट मिलने पर आपको चेक कर लेना है सारे पेपर्स ठीक हैं कि नहीं, सारे कागज अंदर कोई पेज मिसिंग तो नहीं है. अगर वो मिसिंग है तो आपको बारकोड लगाने के बाद दूसरा आंसर शीट नहीं मिलेगा. आपको लिखना, पॉइंट नंबर 6 है कि लिखने की शुरुआत आपको पेज नंबर 3 से करनी है. नेचुरली फर्स्ट पेज पे आपका मेन डिटेल्स है, सेकंड पेज पे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पेज हम अब देख रहे हैं. लिखने की सुरुवात होगी पेज नंबर 3 से. उत्तर पत्रिके, पॉइंट नंबर 7, उत्तर पत्रिके पानाच्या दोन्ही बाजूस समास सोडू नये. यू आर नॉट सपोज टू लीव द मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर आंसर शीट. अब देखिए लेफ्ट साइड पर तो मार्जिन ऑलरेडी बना हुआ है, प्रिंटेड है. अगर आप चाहिए सब क्वेश्चन के लिए तो एक छोटा सा मार्जिन आपके लेफ्ट मार्जिन के बाजू में बनाइए. इसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको दोनों तरफ मार्जिन छोड़ा जाए. ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7 और रादर पॉइंट नंबर 6. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ. पॉइंट नंबर 7 इज डन. प्रत्येक पानाचे दोन्ही बाजूस लिहावे. प्लीज राइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पेपर, बोथ द साइड्स ऑफ योर आंसर सप्लीमेंट्स आल्सो. एंड सपोज आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है, मैं फाड़ना चाहता हूँ, इट इज नॉट अलाउड. ओके, सो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. आंसर शीट का कोई भी हिस्सा चाहे गलत हो गया, जस्ट पुट अ क्रॉस, डू नॉट टेयर इट. फाड़ कर अलग नहीं करना है. पॉइंट नंबर 9 सेज दैट आपकी जो आंसर शीट है वो जो सुपरवाइजर है उनकी सिग्नेचर उन्होंने की है कि नहीं, वो स्टूडेंट ने चेक कर लेना है. पॉइंट नंबर 10 सेज दैट क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको जो भी फिलअप करना है, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको सीट नंबर लिखा है. तो यू हैव टू राइट डाउन योर सीट नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, बिकॉज आप अपना क्वेश्चन पेपर आगे पीछे कहीं किसी को पास ऑन ना कर दो. पॉइंट नंबर 11 सेज दैट एनी टाइप ऑफ रफ वर्क. ओके, रफ वर्क आपको लास्ट पेज पे, आंसर सप्लीमेंट का जो लास्ट पेज होगा उसके ऊपर आपको अपना रफ वर्क यू कैन राइट डाउन. पेंसिल से कीजिए, पेन से कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है. ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट किसी भी तरह का रफ वर्क आप वहां नहीं करते हो. देन अगेन आप आगे देखिए कि पॉइंट नंबर 12 सेज दैट जो भी आपका संबंधित प्रश्नांचे अथवा उपप्रश्नांचे उत्तर जेथून सुरू येते तेच समस्यात प्रश्न क्रमांक. देयर इज अ बॉक्स प्रोवाइडेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर उसी सेम क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर आप नीचे सॉल्व कर रहे हो उसका मेन क्वेश्चन, सो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर रहे हो, बी सॉल्व कर रहे हो, जो भी है, लेकिन जो टॉप लेफ्ट बॉक्स है वहां पर आपको अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है. और सपोज आपके एक ही क्वेश्चन, एकाच प्रश्नाचा वेगवेगळ्या उत्तर करिता वेगवेगळी पृष्ठे उपयोगित आणण्याची आवश्यकता नाही. सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट. एक ही क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 A B C D है तो उसे एक के बाद एक लिख सकते हो. उसको अलग पेज पर, सब क्वेश्चंस को अलग पेज पर लिखना जरूरी नहीं है. बट अगर आप एक नया क्वेश्चन लिख रहे हो, ओके, तो आपको नेचुरली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको नए पेज पर ही लिखना होगा. तो अगर एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो वो आप नए पेज पे शुरू करोगे. पॉइंट नंबर 14 सेज परीक्षार्थ्यांना उत्तराचा काही भाग खोडला. इफ यू कैंसल्ड एनीथिंग, आपको किसी भी सुपरवाइजर की साइन नहीं लेनी है. बहुत समय पहले ऐसा एक रूल था, अब तो बिल्कुल नहीं है ऐसा. पॉइंट नंबर 15 सेज परीक्षार्थ्यांनी उत्तर पत्रिके निळ्या अथवा काळ्या, वेरी क्लियरली रिटन, आइदर ब्लैक और ब्लू से लिखना है. नो अदर कलर इज अलाउड. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. पॉइंट नंबर 16 सेज दैट परीक्षार्थी विरुद्ध खालीपैकी कोणतेही करण्यावर नियमानुसार शिक्षकाची कारवाई होईल. सो इफ यू हैव कैरीड एनी बुक्स, if you have carried any chits, any papers, any electronic device, if you're trying to talk to somebody, if you're trying to communicate, आप किसी को इशारे कर रहे हो, तो ये कोई भी चीज आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अलाउड नहीं है.
ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन पेपर आप पास ऑन नहीं कर सकते हो, किसी से आप आंसर सप्लीमेंट्स पास ऑन नहीं कर सकते हो. ऑल ऑफ दीज आर पनिशेबल. ओके, सो दीज आर punishable offenses, so please make sure that you're doing none of it. Point number 17 here continues and it says that you have to make sure that पूरे आंसर बुकलेट में कहीं पे भी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं रिलीव करते हो, आप किसी तरह से सिंबल्स नहीं बनाते हो, कोई स्पेशल नंबर्स, आपका सीट नंबर कहीं और लिखना नहीं होता है, सिर्फ जो बॉक्स प्रोवाइड किया वही लिखना है. तो किसी भी तरह से अगर आप आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो, फोन नंबर लिख कर आते हो या रिलीजियस सिंबल्स ड्रॉ करते हो, तो आपको आपका परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड कैंसल्ड. पॉइंट नंबर 18 सेज दैट एग्जाम के 30 मिनट्स पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाना है. और पूरा इस साल आपको पता है कि आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो आपको अगर आपका पेपर 11 बजे शुरू हो रहा है तो 2:10 तक आपको अंदर रहना है. और 30 मिनट्स पहले, मतलब 10:30, अगर 11 o'clock का पेपर है तो 10:30 बजे, 3 बजे का पेपर है तो 2:30 को एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है. सो यू सी दैट 2 बेल्स बजेंगे. एक होगा आपका वार्निंग बेल जो 10 मिनट्स पहले पेपर शुरू होने के पहले 10:50 को होगा, एंड दूसरा होगा जो कंप्लीशन बेल होगा, जो अब 2:10 को जब पेपर खत्म हो रहा है तो आपका दूसरा वार्निंग बेल बजेगा 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे हर सेंटर पर पूरे महाराष्ट्र में. तो स्टूडेंट्स प्लीज बी कोऑपरेटिव. पॉइंट नंबर 20 सेज दैट आपको जो भी हॉल टिकट या कुछ दिया जाता है उसका आपको किसी भी तरह से मिसयूज नहीं करना है. यू डोंट हैव टू फॉर्ज इट, यू डोंट हैव टू ट्राई एंड दूसरे किसी को बिठाने की वगैरह ऐसी कोई भी कोशिश होने पर आपका अटेंडेंस 0 एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट. सो मेक श्योर दैट ऐसी कोई भी चीज आप नहीं करते हो. के अलावा जो विषयाची उत्तरपत्रिका स्केच पेनचा वापर, यू आर नॉट अलाउड टू यूज स्केच पेन्स एट ऑल. यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी कैलकुलेटर, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नो स्मार्ट वॉच. लॉक टेबल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इन केस आप सेंटर पर लेट होते हो तो आपको प्रूफ देना होगा क्या कारण हो गया है. एंड ऑल दीज रूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड. ये सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है. इनकेस आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो ही आपको इस सेक्शन में यू विल बी हैविंग मार्क्स फिल्ड अप बाय द वेरिफिकेशन कमिटी. सो हियर वी सी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट पेज पर आपको रफ वर्क इस तरह से आप कर सकते हो. तो बस जो लास्ट आंसर पेज होगा, अब आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर का बॉक्स प्रोवाइड किया है, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर के बॉक्स में ही अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है. मेक श्योर दैट अब जब ये बॉक्स है जिसमें टीचर्स मार्क्स भरने वाले, तो आपने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5. टीचर्स ने क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन ए के मार्क्स, बी के मार्क्स, सी के मार्क्स इस तरह से भरे होंगे. तो यहाँ पर आपको ये लाइन में जहां तक हो सके प्लीज डू नॉट यूज दिस. आप अपने सारे आंसर्स 1 या 2 लाइन छोड़कर उसके नीचे से शुरू करेंगे, सो दैट आपके जो एग्जामिनर ने मार्क्स भरे हैं उसके बाद अगर मॉडरेटर चेंजेस करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंस्ट्रक्शंस and I hope that everybody is genuinely preparing really very well for the exam, and I hope this short video is going to be really helpful for you. And make sure that आपने फॉर्म 1 पर साइन किया हुआ है. उसके अलावा एक और फॉर्म आएगा जो कॉलेज के रिकॉर्ड के लिए होगा, तो वो भी आपको साइन करके सबमिट करना है. आंसर ऑफ सप्लीमेंट्स के टोटल लिखने हैं, होलोग्राफ लिखकर दोनों भी सेक्शंस में लगाना होगा. तो दिस इज व्हाट यू हैव. So if you see, this is your sample barcode sticker which will be stuck. आप देख सकते हैं कि आपका जो बारकोड लगाया हुआ था वो आपका सीट नंबर होलोग्राफ के नीचे चला जाएगा और ये आपका बारकोड से बाहर जो कंप्यूटर रीड करेगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्ट्रिप दिया जाएगा और इस स्ट्रिप में आप देखेंगे कि कैसे आपका सीट नंबर इस तरफ मेंशन होगा, बारकोड इस तरफ होगा. तो ये बेसिक सी इंस्ट्रक्शन है. And I hope this entire thing will be extremely helpful to you. So just share with your friends and make sure that you're very comfortable before your exam. Wishing you all the best. And I'm going to be taking up some revision lectures for OC and I'll be posting them. So please do share, subscribe,
like and comment. Thank you.